पोषण की शुरुआत हुई है। ठीक है, एनीमिया, स्टंटिंग, वेस्टिंग, मालन्यूट्रिशन। अंडर के अलावा पोषण 2.2 में और क्या किया गया है कि बच्चों को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज को उनके न्यूट्रिशन के ऊपर मेन फोकस किया गया है। 2.2 में फोकस किया गया है डिजिटल एडवांसमेंट पे भी। आजकल एक ऐप आ गया है पोषण को ट्रैक करने के लिए, जिसको हम कहते हैं पोषण ट्रैकर ऐप। हमने आपको बताया एक्सरसाइज, योगा, एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, लिमिट योर स्क्रीन टाइमिंग, अ हेल्दी स्लीपिंग बिहेवियर ऑफ including your 7 to 8 hours of sleep, and if all you are going for reduction of your body weight. एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। Start of event. It's a timeless phrase which says health is wealth, which emphasizes that health is the most valuable and indispensable asset one can possess. So in today's fast-paced and stressful world, prioritizing health and wellness is crucial for maintaining physical, mental and emotional well-being. And nutrition is the cornerstone of health and plays a vital role in maintaining overall health and wellness. A balanced diet fuels bodily processes, supports immune function and mitigates chronic disease risk. So making it vital component of healthcare and wellness strategies. So in this pretext, the Department of Industries in association with Andaman and Nicobar Islands Institute of Medical Science and startups, Mrs. Aquatropics Limited and other startups, we have actually organized this event to promote health and wellness through innovation. And I would like to welcome all the guests and dignitaries today. At the outset, I would welcome Shri Ajit Anand, Deputy Director of Industries. So welcome sir to this event. Thank you for being a part of this inaugural session. And we are really humbled to have Dr. Amrita Verma, Assistant Professor from Department of Community Medicine. Welcome ma'am, we are really humbled. Welcome to this event. And ma'am is actually followed by 2 JRs, I was said, from NS. Welcome to this event as speakers. And we have Dr. Pooja from Krishi Vigyan Kendra. She's speaking on nutrition and balanced diet during the technical session. We'll be also having a session on nutrition and balanced diet and seafood diet from NIOT, National Institute of Ocean Technology. So Dr. Scientists will be soon joining us. We'll start the program. I would request Dr. Amrita Verma, this Assistant Professor from NMS, to just address a few words on this occasion. Dr. Amrita Verma. Good morning to one and all present here. Yes, good morning. I hope you find today's session very interesting and you take away some good points from today's session. As we are here from ANIMS, I am Dr. Amrita and I am accompanied by our team from ANIMS today, which consists of JRs, Dr. Darshika and Dr. Akansha, and also MBBS students from the 2022 batch and also our interns from Community Medicine Department. So thank you all, our team, for joining us today, and apart from that, thank you to all the other participants of this gathering who have come here today to attend this beautiful event. And I also thank the Directorate of Industries and Ajit Anand sir for coming here and painting this beautiful location. And also the startup, Mr. Vinod, who has been constantly collaborating with us, and Sunita Madam, who has been regularly in touch with us to collaborate for the event. So I hope this becomes a grand success and we are able to impart wonderful knowledge and beautiful insight on nutrition today. So basically our session today is about importance of nutrition and what is the role of nutrition in different stages of life and how is it related to different diseases. Since we belong to the Department of Community Medicine, it is also known as preventive and social medicine.
So we are the flag bearers basically of preventing the disease. We always say that prevention is better than cure, and what better way to prevent any kind of disease than focusing on the nutritional aspect of all the diseases, isn't it? Yes or no? Yeah, I now request Shri Ajit Anand, Deputy Director Industries, to say a few words of motivation on this day. Thank you so much, sir. So what I explained to the health prevention is more better than the cure. अभी आपको सोचिए कि क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी का सोर्स ऑफ क्या है, इसको फूड है, वेल बेस्ट है, ऑक्सीजन मिलेगा, ये ओनली कम इन द एयर, फर्स्ट वी टेक द एयर, so when we live there, we live there. So air is the important, that is the main source of energy, and that becomes air, we should not become breathe. और थर्ड है मेडिटेशन, मेडिटेशन से आपको एनर्जी का हमारा जो स्टार्टअप है, हमारा स्टार्टअप के स्कूल के अंदर पर वेरियस टाइप ऑफ स्टार्टअप्स को हम लोग डेवलप करते हैं और दैट इज लाइक यू पीपल विद न्यू इनोवेटिव आइडिया जैसे काम we are trying for education center and so they or the Puducherry University, because coming in the near future, we will be coming to the integration center. मैं डॉक्टर अमृता वर्मा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एनएम्स से, और आज हम यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बाय द स्टार्टअप्स, स्पेशली सी एक्वाट्रॉपिक्स. So they have called us to educate the people and educate the participants on importance of nutrition. Nutrition का क्या रोल है आपके डे टू डे लाइफ में, डाइटरी अवेयरनेस के बारे में, प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो औरतें 15 से 49 इयर्स के एज ग्रुप में आती हैं, उनके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. सो उसमें डाइट का क्या रोल है और ये स्टार्टअप्स कैसे हेल्प कर सकते हैं हमें. बेसिकली स्टार्टअप्स हमारे बहुत मददगार हो सकते हैं क्योंकि ये गैप को ब्रिज करने में हमारा हेल्प कर सकते हैं. जितने भी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन और लैक ऑफ अवेयरनेस है, इसमें जो गैप हो रहा है, इसको ब्रिज करने के लिए इनका बहुत योगदान हो सकता है हमारे लिए. साथ में जो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हमने बताया कि न्यूट्रिशन का महत्व क्या है. बेसिकली साइंस ऑफ फूड होता है न्यूट्रिशन, और उसका हमारे सेहत के साथ क्या संबंध है, उसी को हम न्यूट्रिशन में इंक्लूड करते हैं. और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत एंथुसियास्टिकली उन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, कई सारे डाउट्स पूछे, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम उनको एजुकेट कर पाए कि जितनी डिजीजेस हैं जो कि न्यूट्रिशन से संबंधित है, उनका आपके लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ता है और उनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन. और साथ ही साथ उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बताया, जो सितंबर के महीने में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि हर साल बताया जाता है कि न्यूट्रिशनली बेनिफिट चीज़ें जो होती हैं, जितने भी खान पान के आइटम हैं, उनको इस्तेमाल करके, जैसे लास्ट ईयर 23 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था, और मिलेट्स के इंपॉर्टेंस को बताया गया कि डाइट में आप मिलेट्स को इंक्लूड करते हैं तो क्या क्या चीज़ों से आपको बेनिफिट मिल सकता है, और आपको कौन कौन, जैसे कैल्शियम में बहुत हाई होता है रागी, ठीक उसी प्रकार फाइबर में बहुत हाई होता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है उसमें. और जो हमारे एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत प्रेवलेंट है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या खान पान का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स उसी एज ग्रुप में हैं. आज जो हमारे बीच उपस्थित हैं वो सारे 15 to 49 ईयर्स के बीच के पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनको बताया हमने कि कैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, अंडरवेट, ओवरवेट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया. उनको ऐसी चीज़ों के बारे में, खान पान के बारे में एजुकेट किया और अवेयरनेस फैलाई उन लोगों में कि क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने डाइट में एक बैलेंस डाइट कैसे इंक्लूड कर सकते
सकते हैं। ऐसे जैसे कुपोषण को प्रिवेंट करने के लिए आप एक प्रॉपर पोषक तत्व का प्रयोग करें और उसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसको अभी रोकथाम किया जा सकता है। हम हमेशा कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो हमारे सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है। हमारा मेन मकसद यही है, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम डिजीज होने से पहले उसको रोकें, और इसीलिए न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस उत्पन्न करना इतना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा खाना खाएंगे, एक पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना खाएंगे, एक पौष्टिक आहार लेंगे, तो आने वाले समय में जितनी भी बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो, आयोडीन डेफिशिएंसी हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो डाइट से हमारी शुरुआत होती है, एक प्रॉपर डाइट लेने से उसको हम जल्द से जल्द रोकथाम कर सकते हैं या उसको शुरू होने से भी बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोर है और हम स्टेट आइलैंड से बिलोंग करते हैं जी। हमारा नाना जो था वो हमेशा हमें बोलते थे कि ये खाने से हम लोग थोड़ा फिट रहेगा, मतलब जैसे कि कोकोनट के अंदर, मतलब ये नारियल के अंदर एक फूल रहता है, वो खाने बोलते थे, और ये केला, नींबू सब कम ही खाने बोलते थे। और डाइटिंग में मतलब फिश भी खाते थे हम लोग, केकड़ा भी खाते थे, और इस तरह बहुत कुछ है खाते हैं हम लोग, लेकिन तो डाइट में रहते हैं। ऐसी बाहर का चीज़ ज़्यादा खाने मना किया। ज़्यादा सी फूड का इस्तेमाल होता है जी, सी फूड नेचुरल पद्धति से मिलता है जी, वही चीज़। क्योंकि हम लोग का यही नेचर है। हम लोग का जैसे कि हम लोग का फिश खाना, केकड़ा खाना, बहुत कुछ है इस तरह का। और नारियल वगैरह नारियल डेली लाइफ में, क्योंकि सर ने जैसा बोला कि यहाँ का जो ओरिजिन, जो यहाँ का लोकल का जो फूड है जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं। तो आप डेली लाइफ में किस तरह का आप फूड इंटेक करते हैं डेली लाइफ में? मतलब डेली आप क्या करते हैं एक आइलैंड में? हम लोग आइलैंड में मतलब खेती वगैरह करते हैं, लेकिन हम लोग खुद का जो ये हम लोग वही खाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा बाहर की चीज़ नहीं खाते हैं। जैसे कि हम लोग राइस तो खाते हैं, लेकिन राइस के साथ थोड़ा फिश खाते हैं, नहीं तो कुछ सब्जी आइटम जैसा खाते हैं। तो मैक्सिमम लोकली जो फूड जो अवेलेबल है उसको खाने से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहता है। जैसे सर ने वही बोला था कि जो मेनली जो लोकल जो फूड जो लोकल में जो उगाया जाता है उसको खाने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है करके। तो इसीलिए आप लोग का जो हेल्थ जो है वो बेटर रहता है। जी, मेरा नाम विनोद वर्मा, मैं एक स्टार्टअप का इधर का। हम लोग सी फूड और हेल्थ केयर के बारे में काम कर रहे हैं एक्चुअली। आज एक हम लोग का स्टार्टअप का एक प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च कर रहा है एक्चुअली। वो मेन क्या है कि हेल्थ का बारे में। हम लोग अंडमान में क्या है कि मतलब फूड्स के लिए हम लोग मैक्सिमम डिपेंड होता है मेनलैंड का सोर्सेस में। लोकल प्रोडक्शन बहुत कमती रहता है एक्चुअली। इसका पीछे क्या होता है कि हम लोग का हेल्थ में डिफिशियंसीज ज़्यादा रहता है एक्चुअली। मतलब उसका बात क्या है कि पब्लिक का एक माइंडसेट ऐसा है कि अंडमान में नहीं मिलता है करके क्या करते हैं, ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी होता है मेनलैंड का फूड्स के बारे में। अभी हम लोग का स्टार्टअप क्या करता है कि दो चीज़ में हम लोग फोकस कर रहे हैं। मतलब जो अभी एक मैडम ने बोला बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट खाने से क्या है कि सब अच्छा रहता है, लेकिन ऑलरेडी जो मतलब बैलेंस से बाहर आ गया, मतलब ऑलरेडी जो एक्सेस वेट हो गया, ऑलरेडी जो उसका क्रॉनिकल डिसीज मतलब बीपी, शुगर और हार्ट डिजीजेस, और जो ऑलरेडी वो आ गए एक्चुअली, वो लोग क्या करते हैं अभी मेडिकल डिपेंडेंस होता है एक्चुअली अभी वो, क्योंकि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली आदमी का पास। क्योंकि ये हम लोग का सिस्टम ऐसा बनाया है जो प्रोसेस्ड फूड्स, मतलब हम लोग पहले क्या करता था, हम लोग सभी नेचुरल फूड खाता था, जो मतलब खेती में मिलता था वो खाता था, और समुद्र में मिलता था वो फिश खाता था। उसमें क्या है कि हेल्थ एक बैलेंस रहता था एक्चुअली। अभी क्या हुआ कि सारा जो प्रोसेस्ड फूड सारा है ना, उसका पीछे क्या हो रहा है कि हम लोग का डाइट में बैलेंस ऑलरेडी मतलब 38% लोग का अंडमान में बैलेंस नहीं है, मतलब ओवरवेट हो गया, नहीं तो बहुत सारा बीमारी ऑलरेडी आ गई। वो लोग के लिए बैलेंस डाइट देके वो मतलब करने से भी वो लोग नॉर्मल होना बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें आप वॉकिंग करो, कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, कितना भी करने से आपका वेट कम नहीं होएगा, आपका डायबिटीज कम नहीं होएगा,
आपका छोटा छोटा चोट लग गया है तो आपका डायबिटीज का पीछे वो बड़ा बीमारी बन जाएगा एक्चुअली। ये सब एक कनेक्टेड है एक्चुअली, इंटर कनेक्टेड डिसीज बोलते हैं एक्चुअली। अभी क्या हुआ, कोरोना आने के बाद एक अच्छा एक इनोवेशन मतलब वर्ल्ड वाइड एक चेंज है एक्चुअली। वो क्या है कि कीटो डाइट और इंटीग्रेटेड फास्टिंग। मतलब ये चीज क्या है कि आप ऑलरेडी ये सिस्टम में सफर हो रहे हैं, वो लोग के लिए ये आया, अमेरिका से आया एक्चुअली वो सिस्टम। मतलब आपका डाइट चेंज करना है, मतलब आप जो भी खाता है एक लिमिटेड टाइम, मतलब उसका क्या है कि मतलब आप सुबह 6 बजे शुरू करके रात 10 बजे से तक खाने से ना आपका जो भी अंदर का जो भी है ना एक्चुअली वो खत्म होने का चांस है ही नहीं एक्चुअली। इसके लिए वो क्या इंटीमेटेड फास्टिंग करके एक फास्टिंग है, मतलब हम लोग इंडियन कल्चर में कि फास्टिंग बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन कि उसका डेली प्रैक्टिस करना है तो इम्पॉसिबल है एक्चुअली फास्टिंग करना। लेकिन उसके लिए एक सिस्टमाइज किया, आप 8 घंटा खाओ, एक विंडो में खाओ, सुबह 10 बजे से 6 बजे के अंदर ही जो भी खाओ, जो खाना है एक्चुअली। हेल्थी डाइट में क्या है ना, हम लोग सोचते हैं मतलब ज़्यादा वेजिटेबल खाओ, ज़्यादा ये मीट का वो सब सोचते हैं, लेकिन क्या है कि बैलेंस जो कीटो डाइट ये सब डाइट में क्या बोलते हैं आप ज़्यादा फैट खाना है। फैट मतलब कहाँ पे मिलता है, हम लोग जो डायरी प्रोडक्ट्स मिलता है ना, घी मिलता है, चीज मिलता है, वो सब में ज़्यादा फैट रहता है। फैट रहने से खाने से क्या होएगा, आपका भूख नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगेगा आप हर टाइम जाके खाने का जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। वही ये हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं कीटो डाइट मतलब एक फैटी डाइट है। अब उसमें क्या है कि ज़्यादा मछली भी क्या है, मछली हम लोग डेली मिलता है ना, छोटा मोटा मच्छी, मतलब तारनी मच्छी, बंगड़ी मच्छी, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली हेल्थ के लिए। बड़ा बड़ा मच्छी से हम लोग अंडमान में मिलता है मछली, छोटा मछली में बहुत फायदा है एक्चुअली, उसमें फैट रहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसका ओमेगा 3 फैट। ओमेगा 3 फैट जब तक हम लोग बॉडी में नहीं लेते ना एक्चुअली, जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड से मिलता है, जो प्रोसेस्ड ऑयल से मिलता है, उसमें ज़्यादा ओमेगा 6 रहता है, उसका बैलेंस करना पड़ता है ओमेगा 3। वो ओमेगा 3 मिलता है हम लोग का फिश में मिलता है, वो अंडमान में बहुत मिलता है एक्चुअली, वो छोटा मछली।